آج کل کا انسان بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے۔ کوئی بڑی بڑی عمارتیں بنا رہا ہے تو کوئی بڑے بڑے محل بنا رہا ہے۔ تو کوئی گھر بنا رہا ہے، کوئی در و دیوار کو سجا رہا ہے۔ در و دیوار کو سجانے والوں، کسی بھی پل، کسی بھی گھڑی تم کو قبرستان کی طرف جانا پڑ سکتا ہے۔ قبرستان میں جانے سے پہلے قبرستانوں کی ہو رہی بے حرمتی پر آدھارت ہے ہماری یہ فلم۔ کیا دیکھ رہے ہو اللہ والو؟ بھائی، اس قبرستان میں ایک پاک صاف جگہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس قبرستان کو تو پورا ہی پاک صاف ہونا چاہیے تھا، مگر انسانوں کے دل و دماغ پر پتھر پڑ گئے۔ ٹھیک کہتے ہو بھائی، مگر انسان یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ اسے ایک نہ ایک دن اسی قبرستان میں آنا ہے، اسی قبرستان میں آنا ہے۔ اے میرے مولا، اللہ 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 اے میرے اللہ، یہ کیسا عذاب ہے میرے اللہ۔ یہ میرے اپنے جو کل تک اپنے محلوں میں مجھے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر بٹھایا کرتے تھے، مجھ سے مشورہ لیا کرتے تھے، میری عزت کیا کرتے تھے، لیکن آج یہ میرے اپنے مجھ پر، ہم قبرستان والوں پر کوڑا پھینک رہے ہیں۔ میرے اللہ، یہ کیسا عذاب ہے میرے اللہ، یہ کیسا عذاب ہے میرے اللہ۔ ہم سب کو اس عذاب سے نجات دلا میرے پروردگار، اس عذاب سے ہم سب کو نجات دلا میرے پروردگار، نجات دلا۔
میرے پروردگار ہماری حفاظت فرما کہ آج کا انسان یہ بھول چکا ہے کہ اسے بھی ایک دن مر کر اسی قبرستان میں آنا ہے۔ ایسے کتنے بزرگ، کتنے ولی، کتنے فقیر، کتنے اولیاء تیرے سارے سچے عبادت گزار بندوں کی اس طریقے سے بے حرمتی ہوتی رہے گی میرے پروردگار۔ اے میرے خدا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ آمین۔ ہم سے جو انجانے میں غلطیاں ہوئی ہیں انہیں معاف فرما۔ آمین۔ اے میرے پروردگار، ہماری حفاظت فرما۔ آمین۔ تو ہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ آمین۔ تو ہی ساری پریشانیوں سے نجات دلانے والا ہے مولا۔ آمین۔ اس قبرستان میں رہنے والوں کو معاف کر دے میرے مولا، معاف کر دے۔ ہمیں اس عذاب سے نجات دلا، اس عذاب سے نجات دلا میرے مولا، نجات دلا۔ ہمیں اس عذاب سے نجات دلا میرے پروردگار، اس عذاب سے نجات دلا، نجات دلا میرے پروردگار۔ آمین۔ سبحان ربک۔ اللہ مجھے بچا لو، اللہ مجھے بچا لو، اللہ 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 مجھے بچا لو، اللہ مجھے بچا لو، اللہ 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 مجھے بچا لو، 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 اللہ۔ یہ وہ انسان ہیں جو قبرستان کی بے حرمتی کیا کرتے تھے۔ قبرستان میں رہنے والوں کی دعا قبول ہوتی ہے جب خدا کی خدائی جو اس میں آتی ہے تو وہ پتھروں سے بھی کام لے لیتا ہے۔ خدا نے ایسا ہی ایک کارنامہ کر دکھایا۔ سماج وادی پارٹی کا نام دے کر اکھلیش یادو کو الیکشن میں کھڑا کرتا ہے، اکھلیش یادو کو بھاری بہومت سے جیت دلاتا ہے۔ خدا اکھلیش کے دل و دماغ میں قبرستان کی باؤنڈری کرانے کا سلسلہ اٹھاتا ہے۔ اکھلیش یادو دوارا ایک بجٹ تیار کر باؤنڈری کا کام شروع کر دیا جاتا ہے۔ آج دور دور تک ان قبرستانوں میں گندگی نہیں ہے اور نہ ہی اب کوئی واہیات چیزیں آتی ہیں، کیونکہ باؤنڈری کی دیواریں سپا سرکار کی مضبوط ارادوں سے بنی ہیں۔ آج قبرستان میں رہنے والے چین و سکون کی نیند سو رہے ہیں۔ سرکار ایسی بنائے جو آپ کو بنائے، آپ کے اتر پردیش کو چمکائے، تو سماج وادی پارٹی کو ووٹ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپا سرکار کا یہ قدم جو انہوں نے اتر پردیش کے قبرستانوں کے لیے اٹھایا اور ان کی باؤنڈری کرائی ان کی حفاظت کے لیے،
ये दीवारें कायम की। मैं और तमामी मुसलमान इस सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, इसलिए कि बाउंड्री ना होने की बुनियाद पर जानवर दाखिल हो जाते थे। कुछ हमारे मुसलमान जूते पहनकर दाखिल हो जाते थे। हालांकि फरमाया गया कि अगर एक तरफ मुसलमान की कब्र हो और दूसरी तरफ आग के अंगारे हों, तो रिवायात में आता है कि हमें अगर पता चल जाए कि किसी मुसलमान की कब्र पर चलना कितना बड़ा गुनाह है, तो हम आग के अंगारों पे चलना गवारा करेंगे, मगर किसी मुसलमान की कब्र पर चलना गवारा नहीं करेंगे। और यहाँ तो हाल ये था कि जानवर दाखिल हो जाते थे और वो मुसलमानों के कब्रों की बेहुरमती करते थे। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि सपा सरकार ने इस अजीम कारनामे को अंजाम दे के मुसलमानों के दिल को खुश किया, और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा के लिए भी सरकार हमारे लिए ऐसे एहतिमाम करती रहेगी। तो इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन हम भी मुकम्मल तौर पर उसका साथ देंगे। और हम ये दावा करते हैं कि इसलिए कि मुसलमान वफादार कौम है, और हम तो फिर भी दुनिया में रहते हैं तब भी हिंदुस्तान में रहते हैं, और जब दुनिया से जाते हैं तब भी हिंदुस्तान में रहते हैं। हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, ज़मीन खोद के देखोगे हम ही निकलेंगे। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगर सपा सरकार ने अगर इन कामों को आगे बढ़ाया तो इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन मुस्लिम कौम पूरा उनका साथ देगी। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो कब्रिस्तानों की हालत थी वो इंतहाई बदतर और नाकाबिल बयान थी। मैं अब कभी जनाजों के साथ कब्रिस्तानों में जाता था तो आम तरीक़े से कब्रिस्तानों के अंदर जो गंदगी, गलाजत के ढेर और इसी तरीक़े से जो वहाँ जुआ और दूसरी खुराफातें होती थी, उनसे बहुत तकलीफ़ पहुँचती थी। मैं ख़ुद यहाँ बिजनौर के अंदर तकरीबन 50 बीघे कब्रिस्तान का मुतवल्ली हूँ। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मुझे मुतवल्ली बनाया है। उस कब्रिस्तान की हालत भी बहुत बदतर थी। जगह जगह लैट्रीन करना, पेशाब करना, गंदे कपड़े डालना, कूड़ियाँ डालना, और शहर का आधा पानी जो गंदा कब्रिस्तान के बीच से गुजरना, बस हालत देखी नहीं जाती थी। लेकिन अचानक एक दिन मैं जब एक जनाजे के साथ कब्रिस्तान पहुंचा तो काफ़ी देर तक ये महसूस करता रहा, मैं भी और मेरे साथी भी, कि क्या हम उसी पहले जैसे कब्रिस्तान में आए हैं या कोई नया कब्रिस्तान है। क्योंकि पूरे कब्रिस्तान में सफाई, न कहीं कोई कूड़ा, न कोई गंदगी, न कहीं कोई कूड़ी, और चारों तरफ सफ़ेद रंग की, जैसा किसी ने चांदी की दीवार खड़ी कर दी हो। ताहद नज़र वो बाउंड्री नज़र आई और वो देखकर इतनी खुशी हुई कि शायद अगर हमारा अपना ज़ाती मकान भी बनता तो शायद इतनी खुशी न होती। और ये इसलिए खुशी भी हुई कि बिल्कुल गैर मुतवक्के, कभी ज़िंदगी में 100 साल तक ये उम्मीद की नहीं जा सकती थी कि हिंदुस्तान के अंदर जो उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़ा हुआ सूबा है, उसके अंदर कब्रिस्तानों की हालत इतनी अच्छी भी हो सकती है, कभी नहीं सोचा जा सकता था। लेकिन ये मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे और उनका जो सियासी परिवार है, ये उसकी देन है कि उन्होंने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि आज़ाद हिंदुस्तान में किसी भी पार्टी को ख्याल भी इस तरक्की की तरफ, इन कब्रिस्तानों को बचाने की तरफ नहीं गुजरा था। मैं ये समझता हूँ कि अगर इस परिवार को और मुलायम सिंह जी को अगर इसी तरीके से इनके हाथों को और मजबूत किया गया और इनको और मौका काम करने का दिया गया, तो ये ईदगाहों का तहफ़्फ़ुज़, मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़ और बड़ी बड़ी जो अजीम शान दरगाहें हैं अहलुल्लाह की, और अपने ज़माने के कुतुब और अब्दालों की जो कब्रें हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम भी ज़रूर किया जाएगा, और इससे मुसलमानों को बड़ी क़ल्बी राहत और बहुत सुकून पहुँचेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जामिअतुल कुरान व सुन्नह अल खैरिया बिजनौर का मैनेजर डॉक्टर फुरकान बोल रहा हूँ। अभी कुछ दिनों पहले हमारी समाजवादी पार्टी की हुकूमत, मोहतरम अखिलेश यादव की हुकूमत ने बड़ा अच्छा कदम उठाया। जितने भी कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड में दर्ज हैं उन सब की बाउंड्री करा दी। इससे तमाम कब्रिस्तान की ज़मीनों की हिफाजत हो गई, और हमारी हुकूमत के इस कदम से तमाम मुसलमानों को बड़ी खुशी है। और हम सब ही
हुकूमत के इस इक़दाम का खैर मकदम करते हुए हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं और हमें उम्मीद है कि हमारी ये हुकूमत आइंदा भी इस तरह के इक़दामात करके पब्लिक की खिदमत करती रहे। मेरा कहना यह है कि समाजवादी पार्टी जब से वजूद में आई है और समाजवादी पार्टी ने जो कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल कराने का जो सराहनीय काम किया है, ये एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी उपलब्धि है समाजवादी पार्टी की, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश के जो कब्रिस्तान थे उनका बहुत ही बुरा हाल था, बहुत ही उनकी बेहुरमती होती थी। हाल ये था कि अगर कब्रिस्तान में किसी मैयत को लेके जा रहे हैं तो वहां की हालत को देखकर बड़ा अफसोस होता था और दिल कांप उठता था। हर कब्रिस्तान में ज्यादातर ये देखने को मिलता था कि वहां लोग पेशाब कर रहे हैं, लेट्रिन कर रहे हैं, अपने घर का कूड़ा करकट कब्रिस्तान में कब्रों पर डाल रहे हैं, कूड़ियां डाल रहे हैं। बड़ी बेहुरमती उन कब्रों की होती थी जो हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग जो वहां दफन हैं, उनकी बहुत बेहुरमती होती थी। बहुत बार ये जहन में आया कि किस तरह से इन कब्रिस्तान को महफूज किया जाए, इनकी किसी तरह से बाउंड्री कर दी जाए, लेकिन चूंकि बहुत बड़ा काम था, मैंने कई बार सोचा कि मेरे पास ऊपर वाला मुझे इतना पैसा दे दे कि मैं कुछ कब्रिस्तान की बाउंड्री करवा दूं, लेकिन मेरे पास चूंकि इतना पैसा नहीं था। बहुत बड़ा सराहनीय काम है कब्रिस्तान की बाउंड्री को लेकर समाजवादी पार्टी का। बधाई के पात्र हैं हमारे युवा माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी।